Hi everyone, welcome to Learn with Radha. This is the next part of chapter 6, respiration. We'll discuss about the respiration in this video. What is respiration? Sometimes we confuse respiration with breathing, but respiration and breathing are two different terms. Breathing is a part of respiration. So when we take when we take oxygen, the food is broken down and oxygen is utilized, and the end product is carbon dioxide, which we breathe out. So this is respiration. All the food material that we take in has to be broken down. जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उससे एनर्जी निकालने के लिए उसका ब्रेक डाउन ज़रूरी है, ताकि हमें उससे जो न्यूट्रिशन है वो हम सेल्स तक पहुंचा पाएँ. So the food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. तो एनर्जी चाहिए फूड से, और फूड से एनर्जी चाहिए, इसलिए उसका ब्रेक डाउन भी ज़रूरी है. Some organisms use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. सम यूज़ अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन. कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. So in all cases, when we break glucose, which is a 6 carbon molecule, it is converted to pyruvate, which is a 3 carbon molecule, and it takes place in cytoplasm. So this is important. When there is a complete breakdown, this step is important because in every organism glucose is first being broken down to pyruvate, which is a 3 carbon molecule, and it takes place in cytoplasm. But in some organisms like yeast, anaerobic fermentation takes place. Anaerobic means when there is no oxygen. So in yeast fermentation takes place. Fermentation is when we convert pyruvate. Actually, yeast convert pyruvate to ethanol and carbon dioxide in the absence of oxygen. And that is why this type of respiration, where there is no involvement of oxygen, where there is oxygen absent, this type of respiration is called as anaerobic respiration. Pyruvate, which is a 3 carbon molecule, when it combines with oxygen, it gives 3 carbon dioxide, 3 molecules of carbon dioxide and water. So this is aerobic respiration. Why? Because here there is involvement of oxygen is there. So pyruvate, when it combines with oxygen, it gives carbon dioxide. Here the complete breakdown of pyruvate is taking place. 3 molecules of carbon dioxide and 1 molecule of water is evolved. So and this process is takes place in mitochondria. The process of aerobic respiration takes place in mitochondria. Energy released in aerobic process is always greater than the energy released in anaerobic process. जो भी energy release होगी aerobic process में, यानी कि एक ऐसा process जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो वर्क हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुवेट का, उसमें जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो हमेशा ज़्यादा होगी उस एनर्जी से जो एनारोबिक प्रोसेस से हमें मिल रही है. Sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. But आपने देखा होगा कभी कभी मसल क्रैम्प्स होते हैं. जब भी आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करोगे या मसल में एक्सेसिव वर्क आप करोगे तो मसल क्रैम्प्स होते हैं. दैट इज़ ड्यू टू the conversion of pyruvate to lactic acid. Lactic acid is also a 3 carbon molecule, and
Why it takes place? Because there is lack of oxygen. When you do a sudden activity or sudden exercise and there is not enough of oxygen going in your body, then muscle there is accumulation of lactic acid in your muscle cells. So this causes the muscle cramps. Now, how glucose is converted to various products in presence of oxygen, in absence of oxygen, and when there is lack of oxygen. So first step, which always takes place in all organisms, glucose, which is a 6-carbon molecule, it is converted to pyruvate in cytoplasm, and pyruvate is a 3-carbon molecule. And when you have absence of oxygen, for example in yeast, this pyruvate is converted to ethanol plus carbon dioxide plus energy, and this process is known as fermentation. Next is when you have lack of oxygen, जब भी ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में है तो वहाँ पर पायरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, जैसे कि ह्यूमन मसल सेल्स में पायरुवेट जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कन्वर्जन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. तो जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में वो ATP को फॉर्म करने में हेल्प करती है. एंड दिस ATP हमें पता है, ATP को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं. And this ATP is used to fuel all other activities in the cell. In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. So ATP के breakdown से energy release होती है और energy जो release होती है वो और जो body में endothermic reactions हैं, endothermic reactions means जहाँ पे energy चाहिए, उन reactions में वो एनर्जी यूज़ होती है. तो आपको पता है ATP में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस होते हैं, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है और ATP is converted to ADP, adenosine diphosphate and phosphate, plus some energy is also released, and this energy is used in the endothermic reactions taking place in the cell. In plants, exchange of gases takes place through stomata. We have seen earlier also stomata की help से, stomata क्या है, tiny pores present होते हैं plants में, especially leaves में, जो help करते हैं exchange of gases में. Due to the presence of large intercellular spaces means दो cells के बीच में जो space present है वो उनकी help से ये ensure करते हैं कि सारे cells air की contact में हैं. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. तो यहाँ पर diffusion से exchange of gases takes place. The direction of diffusion depends upon the environmental conditions and the requirements of the plant. तो जैसे जैसे requirement होती है plant को जिस गैस की, सपोज फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एंड बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस. एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं उस पर भी डिपेंड करता है. Suppose at night when there is no photosynthesis occurring, carbon dioxide elimination is the major exchange activity going on. तो रात के टाइम पे जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है, तो रात में सनलाइट नहीं है इसलिए यहाँ पर इस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन होगा, विच इज़ अ मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग नाइट.
ड्यूरिंग डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन से जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं, दे आर यूज्ड अप बाय द प्लांट्स with the help of the process of photosynthesis. Hence, there is no carbon dioxide release. Instead, oxygen release is the major event at this time. So, oxygen का release हो रहा है photosynthesis से plants में, which is a major activity during the day. Animals में कैसे होता है respiration? So, we have two categories, aquatic and terrestrial. Aquatic animals कौन से होते हैं? जो वाटर एनिमल्स होते हैं, जो भी वाटर में रहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है दूसरी है और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की दूसरी है. सो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि ये एक्वेटिक हैं, वाटर एनिमल्स हैं, तो उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफ़िल होगी? जो भी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है. सो इन दोज ऑर्गेनिजम्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ मच फास्टर. रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग साइकिल जो है वो बहुत फास्ट होती है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ लो टू द ऑक्सीजन इन एयर इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन इन एयर. सो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. सो इन दीज ऑर्गेनिजम्स, in aquatic organisms the rate of breathing is much higher. ये किस लिए? to cope up the need for oxygen. वो उनको ऑक्सीजन उतना ही चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए, इसलिए वो अपनी रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा लेते हैं ताकि वो वाटर से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएँ. एक्वेटिक एनिमल्स का एग्जाम्पल है फिशेस. दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ टेकन अप बाय द ब्लड. तो फिशेस में जैसे कि हमें पता है गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर एनिमल्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ लंग्स. वी हैव लंग्स. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ अ ब्रीदिंग ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन. और यहाँ पर क्या होता है, वो माउथ से वाटर लेती है फिश, और गिल्स से पास होते हुए, और जितना भी ऑक्सीजन होता है वो गिल्स में जो भी ब्लड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसमें, और फर्दर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का देखते हैं. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, एंड दिस ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गन्स में डिफरेंट हैं. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. तो इन सारे organs जो भी respiratory organs हैं, इनका structure कुछ इस तरह से होता है कि surface area बढ़ जाए, surface area को बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा oxygen rich air वहाँ तक पहुँच पाए. Since exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. So here respiratory organ जो है वहाँ से exchange of gases होता है, इसलिए ये surface जो है बहुत fine and delicate होती है. And to protect this surface, it is usually placed within the body. So there have to be passages that will take place, that will take air to this area. तो कुछ ऐसे passages होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये बॉडी के अंदर होते हैं, तो कुछ ऐसे पैसेजेस होते हैं जो एयर को वहाँ उस ऑर्गन तक लेके जाए. इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब्ड. तो कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में कि वहाँ पर एयर अंदर और बाहर जा सके. वो हम ह्यूमन बींग्स का जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में आपको पता चल जाएगा. So how respiration take place in human beings. So passage of air. सबसे पहले हम देखेंगे passage कैसे होता है, एयर कैसे जाती है, किस किस ऑर्गन से जाती है और क्या क्या फंक्शंस हैं उसके. सबसे पहले जब हम ब्रीद इन करते हैं, we take in air, we take in through nostrils, and nostrils has fine hair and mucus present in it. Then that air goes through throat to lungs. So the air reaches to lungs. The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage.
The passage is also lined with mucus which helps in the process. So fine hair, यहाँ पर जो nostrils में fine hair और mucus है, basically इनका function क्या है, ताकि जो भी डस्ट जा रही है अंदर विद एयर में डस्ट भी होती है, तो डस्ट पार्टिकल्स जो भी जा रहे हैं वो उन हेयर्स की वजह से फिल्टर आउट हो जाते हैं और म्यूकस से अटैच हो जाते हैं. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट एंड दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. तो मैं आपको ये फिगर दिखाती हूँ. ये जो पैसेज है ये है थ्रोट. यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं. ये कुछ इस तरह से रिंग्स आप देख सकते हैं. रिंग्स प्रेजेंट हैं और ये रिंग्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि जब हम एयर सक करें, ब्रीद इन करें, तो कोलैप्स ना हो जाए. ये जो विंड पाइप है, ट्रैकिया है, ये कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए इलास्टिसिटी रहे इसमें, इसलिए इसमें रिंग्स होते हैं. उसको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. देन वी टेक एयर विद द हेल्प ऑफ आवर nostrils and this is the nasal cavity. From there the air goes to the windpipe which is also known as trachea and then further to lungs. These are the lungs which is present in the upper abdominal cavity. Then lungs से smaller and smaller tubes arises and which terminate in alveoli. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लंग्स के अंदर कुछ ब्रांचेस जा रही हैं, ये इस तरह से, जिसे हम बोल रहे हैं ब्रोंकियोल्स. लंग्स जब ट्रेकिया नीचे आएगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसे सिंगल को हम बोलते हैं ब्रोंकस. एंड दिस ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स which are known as bronchioles. And further bronchioles are terminated into small sac like structures. कुछ sac like structures आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे balloons दिख रहे हैं, and these are known as air sacs or alveoli. Now what are the function of alveoli? Alveoli are balloon like structures that we have seen in the previous figure. What is the function of alveoli? The alveoli provide a surface area where the exchange of gases can take place. यहाँ पर जो है actual exchange of gases होता है. The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. तो walls जो हैं alveoli की, ये बहुत thin होती हैं और इसमें extensive network of blood vessels होते हैं. Small blood vessels होते हैं और जहाँ पर actual exchange of gases होता है. So when we breathe in, we lift our ribs. ये मैं आपको फिगर से भी बताऊंगी. When we breathe in, we lift our ribs. जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, लंग्स में एयर जाती है, तो हमारे रिब्स जो हैं बाहर की तरफ आते हैं, लिफ्ट अप होते हैं. एंड अब डायफ्रम क्या है? जो हमारे लंग्स को सपोर्ट करता है. नीचे सी शेप स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स को सपोर्ट करता है. तो जब रिब्स ऊपर उठेंगी तो डायफ्रम जो है फ्लैट होगा. चेस्ट कैविटी इनलार्ज होगी. एयर इज सक्ड इन एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वुलाई. तो इस तरह से एल्वुलाई के अंदर एयर जाती है. So when we breathe in, our chest cavity expands, our chest expands, our ribs are uplifted and diaphragm flat हो जाता है. And when we breathe out, lungs जो हैं shrink हो जाते हैं क्योंकि air उससे निकल गई. तो chest जो है contract होगा, lung cavity कम हो जाएगी, decrease हो जाएगी and diaphragm जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो
The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli. Alveoli में exchange of gases हो रहा है. Major exchange of gases takes place in the alveoli because blood vessels वहीं पर present हैं जहाँ से वो पूरी rest of the body को oxygen देगा. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for released into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells of the body. So alveoli में क्या होगा, जो भी body से carbon dioxide आ रहा है वो alveoli में release होगा और वहाँ से जो भी ऑक्सीजन लंग्स में आ रहा है जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं वहाँ से ऑक्सीजन जाएगा जो भी एल्वुलाई में ब्लड वेसल्स हैं और इस तरह से वो पूरी बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दिया जाता है. ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज़ टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. सो जब ब्रीदिंग साइकिल होती है तो लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. और इसका क्या मतलब है, कभी भी लंग्स जो हैं कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होते, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर उसमें रह जाती है जिसकी वजह से क्या होता है हमें सफिशेंट टाइम मिल जाता है टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड टू रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर कम्प्लीटली वेकेंट हो जाएगा लंग्स तो that would be very fatal. That could be fatal. So in order to prevent that condition हमारे पास इतना टाइम होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने के लिए, इसलिए कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स में रहती है. When the body size of animals is large, the diffusion pressure alone is नॉट इनफ. सो अगर साइज़ बड़ा है एनिमल का तो अकेले डिफ्यूजन से, अकेले एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो डिफ्यूजन से होता है उससे काम नहीं चलेगा. देयर हैज़ टू बी सम एडिशनल थिंग्स. तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं एनिमल्स में, उनका काम क्या होता है, दे टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज़ विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट. तो इनका काम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का काम होता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करना और ट्रांसपोर्ट करना सेल्स में, बॉडी में जो सेल्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना. इन ह्यूमन बीइंग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ हीमोग्लोबिन. हमारी बॉडी में ह्यूमन बीइंग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन. हीम जो है दैट इज़ आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन इज़ the protein part, and this hemoglobin pigment has a very high affinity for oxygen. High affinity for oxygen means कि ये ऑक्सीजन के साथ ईजीली कंबाइन कर लेता है और इसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की बहुत अच्छी है. दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पसेल्स. और ये जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. और ये जो पिगमेंट है ये प्रेजेंट होता है हमारे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में. हमारे जो ब्लड सेल्स हैं बेसिकली रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं उसमें जो कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही आता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन is and hence is mostly transported in the dissolved form in our body. So कार्बन डाइऑक्साइड की जो solubility है वो वाटर के साथ ज़्यादा है अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करें. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ ज़्यादा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट होता है इन द डिज़ोल्व्ड फॉर्म, ब्लड के थ्रू, डिज़ोल्व फॉर्म के थ्रू ब्लड में डिज़ोल्व होके कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट होता है आउट ऑफ आवर बॉडी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन. इसी चैप्टर का, चैप्टर 6 का नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.